سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی۔ وطن کے لیے جان قربان کرنے والے افسر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا۔ عثمان خان کی رپورٹ۔ پاک فوج کا ایک اور بہادر آفیسر وطن پر قربان۔ بلوچستان میں بارودی سرنگ دھماکے میں کیپٹن کاشف شہید۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے علاقہ ٹوبو گیچک میں بارودی سرنگ بچھائی تھی، جس کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی ٹکرائی۔ دھماکے میں پاک فوج کے 2 جوان زخمی بھی ہوئے۔ شہید کاشف کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کی گئی، جس میں سپاہی سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت پاک فوج کے دیگر حکام نے شرکت کی۔ شہید فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کیپٹن کاشف شہید کو خراج عقیدت۔ کہا دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں سے ہماری فورسز کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، ہم دشمنوں کو شکست فاش ہوگی۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ اس دوران وہاں موجود دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں ایک دشمن واصل جہنم کر دیا گیا۔ آگے بڑھیں، اہم ملاقات کی بات کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ سے چینی سفیر نونگ رونگ نے ملاقات کی۔ شیخ رشید نے یقین دہانی کروائی کہ پاک چین تعاون اور ترقی کو دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دیا جائے گا۔ اس ملاقات میں چینی سفیر نونگ رونگ نے کہا پاکستان میں چینی کمپنیز مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہیں، چینی شہریوں اور کمپنیز کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول مزید سخت کیا جائے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بتایا کہ چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا افغانستان میں امن اور مستحکم حکومت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور پاکستان کی شکایت پر افغان طالبان نے کالعدم TTP سے متعلق اعلیٰ سطح کا کمیشن بنا دیا۔ امریکی میڈیا نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 3 رکنی کمیشن طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی ہدایت پر بنایا گیا ہے۔ کمیشن TTP پر زور دے رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ کمیشن بنایا گیا ہے طالبان کی جانب سے۔ پاکستان کی شکایت پر افغان طالبان نے کالعدم TTP سے متعلق اعلیٰ سطح کا یہ کمیشن بنایا ہے۔ امریکی میڈیا نے اس سے متعلق دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 3 رکنی کمیشن طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی ہدایت پر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کابل ایئرپورٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں افراتفری سے مزید 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک ہفتے میں ہلاکتوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ برطانوی فوج نے تصدیق کر دی۔ امریکہ نے ایئرپورٹ پر داعش کے حملوں کا خطرہ ظاہر کر دیا۔ امریکی سفارت خانے نے تمام شہریوں کو احتیاط کریں ایسی ہدایت کر دی۔ جرمنی نے بھی اپنے لوگوں کو کابل ایئرپورٹ آنے سے روک دیا۔ OIC نے صورتحال پر غور کے لیے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ افغانستان میں نئی حکومت کب قائم ہوگی؟ حتمی فیصلہ اب تک نہ ہو سکا۔ وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے لیے کابل میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی افغان ڈپلومیسی بھی تیز ہو گئی ہے۔ حکمت یار کہتے ہیں افغانستان کے دشمن ناکام ہو گئے، اب افغان آگے جائیں گے۔ اور اس خبر سے پہلے کابل ایئرپورٹ کے بارے میں ہی آپ کو بتائیں، کابل ایئرپورٹ بلا شبہ فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ کابل کی فتح کے بعد طالبان کے پہلے مرکزی رہنما کا انٹرویو۔ عبدالقہار بلخی نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا شرعی قوانین بالکل واضح ہیں، خواتین، مرد اور بچے سب کو حقوق دیں گے۔ بھارت اور امریکہ کی تربیت یافتہ افغان نیشنل آرمی نے طالبان کو افغانستان پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا۔ یہ سب بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کے غلط مشوروں اور بھاشن کی وجہ سے ہوا۔ افغان فوج تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ اجیت دوول کی 2013 کی بھونڈی حکمت جھاڑنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ تالا توڑو، اسکول کھولو، معاجرہ جانیے تھوڑی سی دیر میں۔ بھارتی عزائم دنیا کو دکھائیں گے۔ کشمیر پریمیئر لیگ سے بھارت کا منفی پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ مودی کو وہی پیغام ہے جو مقبوضہ کشمیر کا نوجوان اسے دے رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کا سما کے نمائندے سہیل رشید کو خصوصی انٹرویو۔ آزاد کشمیر میں تبدیلی لانے کے فیصلے بھی بتا دیے۔ بھارت جو کشمیر میں صورتحال بنائی ہوئی ہے، آزاد کشمیر کی عوام اور حکومت اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو وہ قربانیاں خود دے رہے ہیں، وہاں کا پڑھا لکھا نوجوان ایسے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اس پر دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ وہاں ہر قسم کی زیادتی ظلم جاری ہے۔ مودی کے لیے یہی پیغام دوں گا جو بھارت ادھر کر رہا ہے، نوآبادیاتی نظام اسرائیل کی شکل پر کے
यहाँ हिंदू आबाद करो, दुनिया के सामने इसका पोल खोलना है। KPL करके वो भी दुनिया को साबित कर दिया हमने कि आज़ाद कश्मीर एक पुरअमन खित्ता है। कि KPL से हमें बड़ा सबक मिला कि आज़ाद कश्मीर में एक स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए। सबसे पहले टूरिज्म, इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें नौजवानों के लिए रोज़गार होगा। आज़ाद कश्मीर में जो एहतसाब का निज़ाम है वो पाकिस्तान की तरह फ़ाल नहीं है। कानून साजी करनी है ताकि जिस पर हाथ पड़े वो इधर उधर करके निकल ना सके। आप अगले महीने से देखेंगे कि पुलिस का रवैया तब्दील होगा। और ताला नहीं तालीम, सिंध में स्कूल्स की बंदिश के खिलाफ ये मुहिम शुरू हो चुकी है। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, दादू समेत मुख्तलिफ शहरों में बैनर्स उठाए, नारे लगाते सैकड़ों शहरी सड़कों पर आ गए। सवाल उठाया कि आखिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बच्चों को क्यों तालीम दिलवाना नहीं चाहती। ताला नहीं तालीम। जब भी स्कूल्स खोले जाते हैं, खुले हैं पिछले दिनों में, उसके बाद एक स्पाइक आती है, सिंध सरकार की स्कूल बंदिश पॉलिसी के खिलाफ सूबे भर में मुहिम चल पड़ी। सिंध में बच्चे सिर्फ 22 दिन स्कूल गए, बाकी दिन स्कूलों के दरवाजे बंद रहे। आपने समा टीवी पे देखा कि इस साल सिर्फ 20 दिन के लिए स्कूल खुले हैं, तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। जिसे पीपी भुट्टो का गढ़ कहती है वो लाड़काना। मुसलसल 3 सालों से देख रहे हैं कि हमारे सिंध की तालीम को तबाह किया जा रहा है, और सबसे बड़ा जो किरदार है एक ही पार्टी का है, वो है पीपल्स पार्टी। हैदराबाद दादू इन 1973 के आर्टिकल 25 में मौजूद है कि हुकूमत पाबंद है 5 to 16 ईयर्स के बच्चों को मयारी तालीम मुहैया करने के लिए। यहाँ पे पाबंदी तो छूटी, कानून को तोड़कर ये स्कूल बंद कर रहे हैं। नवाबशाह टंडो अलहयार। लोग रैलियां निकालते हैं, किसी मिनिस्टर की बेटे की शादी है वो तो उन्हें नजर आती है, मगर जो तालीमी इदारे हैं उन पर ताले हैं वो उन्हें नजर क्यों नहीं आते। पन्नू आकिल और सिंध के दीगर शहरों में तालीम से मोहब्बत करने वाले सिंध सरकार की पॉलिसी को तालीम दुश्मन पॉलिसी कहकर मुतालबा कर रहे हैं कि हम नहीं मानते। सिंध हुकूमत के तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखने के फैसले के खिलाफ ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन डट गई। कल आउटडोर क्लासें लगाएंगे, तालीम बचाओ मुहिम शुरू करेंगे, ऐसा ऐलान कर दिया। काशिफ मिर्जा कहते हैं गिरफ्तारियों से नहीं डरते। सिंध हुकूमत का जवाब भी आ गया। महकमा तालीम का कहना है जो स्कूल खुलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध में स्कूल खोलने के मामले पर प्राइवेट स्कूल तंजीमें और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने तालीम बचाओ मुहिम का ऐलान कर दिया। तारिक शाह कहते हैं बस अब तालीम का मजीद हर्ज नहीं होने देंगे। हम जो है वो 23 अगस्त से रोडों पर, सड़कों पर अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखेंगे और शुरुआत करेंगे अपने तालीमी साल की, क्योंकि वैसे ही बच्चों का बहुत लॉस हो चुका है। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा कहते हैं सिंध के बच्चों को भी मुल्क के दीगर बच्चों की तरह तालीम का हक हासिल है। 23 अगस्त को सिंध भर के अंदर तालीमी अदारे हम अपने खोल देंगे, और अगर हमें रोका जाता है या हमारे स्कूलों को सील किया जाता है या गिरफ्तारियों का सिलसिला होता है या हमें जेलों में डाला जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। स्कूल तंजीमों के बयानात पर महकमा तालीम सिंध ने भी धमकी दे दी है। बयान में कहा गया जो स्कूल खोलेगा कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, खिलाफ वर्जी पर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हो सकती है। स्कूल एसोसिएशन और सिंध सरकार की महाजाराई पर वालिदैन और तलबा दोनों परेशान हैं। छोटे बच्चे ये देखो अब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया ये घर बैठे हुए, 2-2 महीने ट्यूशन की फीसें, स्कूल की फीसें हम तो ऐसे दे रहे जैसे गुलाम है। बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है इसके अंदर। ऑनलाइन में इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही, कभी नेट नहीं चल रहा होता, कभी ये मसले कभी ये मसले। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी नहीं
समझ आ रहा। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज कोरोना फैलाव को जवाज बनाकर स्कूल ताहुक्म सानी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। ऐसे में हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत बच्चों को तालीम से महरूम रखना चाहती है। बच्चे पढ़ गए तो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं चोट मिलेगी। जावेद हनीफ ने पीपल्स पार्टी की पॉलिसी तालीम दुश्मन करार दे दी, जबकि तैमूर तालपुर कहते हैं कोरोना है स्कूल कैसे खोल दें। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारे गैर मुइन्ना मुद्दत तक बंद करने का फैसला। स्कूलों की बंदिश पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख फट पड़े। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, क्योंकि उन्हें पता है कि जब सिंध के लोग तालीम हासिल कर गए, जब हमारे बच्चे तालीम हासिल कर गए तो इनका ये टूपी ड्रामा खत्म हो जाएगा। वो नहीं वोट करेंगे इनको, मैं समझता हूँ। रहनुमा MQM पाकिस्तान जावेद हनीफ ने समा से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत कोरोना का बहाना बनाकर तालीम दुश्मनी पॉलिसी पर गामजन है। रूरल एरियाज में तो वैसे ही इनकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि लोग पढ़ें वहाँ पे। अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ थोड़ी बहुत एजुकेशन मिलती है, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा तैमूर तालपुर ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा स्कूलों की बंदिश का फैसला बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया। हम खुद चाहते हैं पढ़ाई को फरोख्त मिले, बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया है बच्चों को। अगर वो SOPs मेंटेन की जा सकती हैं, अगर साया दिया जा सकता है, अगर 6 फुट का डिस्टेंस रख सकते हैं, अगर मास्क पहनाने का जिम्मा उठा सकते हैं तो उसमें बातचीत कर सकते हैं। तैमूर तालपुर का कहना था कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं जब तक पीपल्स पार्टी सिंध में बरसरे इख्तिदार रहेगी हालात बेहतर नहीं होंगे। पौधे तो दूर की बात, यहाँ इंसानों के पीने के लिए भी पानी नहीं। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार के अंदर रहेगी सूबे सिंध के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती है। ये दरख्त उगाना तो बहुत दूर की बात है, सूबे सिंध में तो आवाम के पास पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। आज स्कूलों में बच्चों के पास तालीम नहीं है और आज 1.5 साल हो गए आपके स्कूल बंद हैं। उसके साथ साथ अस्पतालों में आपके पास इलाज मौजूद नहीं है। वजीर आजम साहब से गुजारिश की है कि वजीर आजम साहब जिस तरीके से सूबा पंजाब आपका है, KP आपका, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इसी तरीके से सूबा सिंध भी आपका है। जिस तरह सूबे सिंध के अंदर तबाही हो रही है, जिस तरह सूबे सिंध के अंदर करप्शन हो रही है, जिस तरह सूबे के अंदर लूटमार का सिलसिला चल रहा है, ये वहाँ पे पहुँच जाएगा सूबा के जहाँ से वजीर आजम साहब हम इसको वापस शायद उठा नहीं पाएंगे। अफसोसनाक वाक़े का जिक्र रावलपिंडी में 16 साला लड़की से मदरसा मोहतमम और उस्ताद की मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज हुए 6 रोज़ गुजर गए। शरीके जुर्म मौलमा समेत मुलजिमान को गिरफ्तार करने में पुलिस ताहाल नाकाम है। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। रावलपिंडी के इलाका पीर वधाई में 16 साला तालिबा से मदरसे में मुबैना ज्यादती, मदरसा मोहतमम, उस्ताद और मुआविनत करने वाली मुअल्लिमा के खिलाफ लड़की की वालदा की मुद्दइयत में FIR दर्ज हुए 6 रोज गुजर गए। मुतासरा लड़की और वालदा का पुलिस पर मुलजिमान को गिरफ्तार करने से गुरेज और अदम ताउन का इल्जाम। मेरे उस्ताद ने मेरे साथ गलत काम किया है और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, वो बाहर घूम रहे सरियाम। FIR के मुताबिक मदरसा मोहतमम ने लड़की को पहले भी बारहा हिरासां किया। वक़ुआ के रोज नशा आवर चीज पिलाकर मुबैना ज्यादती की गई। जुबान खोलने पर लड़की को अहले खाना समेत बारूदी मवाद से उड़ाने की धमकी भी दी। जुबान बंद रखने के लिए मुअल्लिमा ने भी लड़की पर दबाव डाला। मुतासरा खानदान की अरबाब इख्तियार से मदद की अपील। थाना पीर वधाई वालों को आप खुद CPO, RPO, IG पंजाब जो भी है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके एक्शन लें। पुलिस का कैमरे पर मौक़िफ़ देने से गुरेज, अलबत्ता ये जरूर कहा जा रहा है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर लाहौर में खातून टिकटॉकर पर हमला केस में तफ्तीश जारी है। अदालत ने मजीद 30 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। फयाजुल हसन चौहान के मुताबिक 407 मुश्तबा अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया। टिकटॉकर खातून से दस्त दराजी का वाकया, मजीद 30 मुल्जिमान शनाख्त परेड के लिए जेल पहुंच गए। जेल भिजवाए गए मुल्जिमान की मजमूई तादाद 70 हो गई। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में चेहरे छुपाकर अदालत लाया गया। पुलिस ने शनाख्त परेड के लिए मुल्जिमान को जेल भेजने की इस्तदा की, जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मंजूर करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की।
दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वाक़ये में मुलविस 92 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका। फैसलाबाद, कसूर और शेखुपुरा से 26 मुलजमान पकड़े गए। फयाज चौहान के मुताबिक 407 मुश्तबा अफराद को शामिल तफ्तीश किया और तहकीकात के बाद 315 अफराद को छोड़ दिया गया। दीगर मुलजमान की शनाख्त और गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल और साथी रिपोर्टर रियाज अहमद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। लाहौर में ग्रेटर पार्क में खातून के साथ बदतमीजी का वाकया। टिकटॉकर हरीम शाह कहती हैं किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि खातून को हिरासा करे, उसकी तजलील की जाए। कुछ लोग मर्दों के और कुछ खवातीन के हक में बोल रहे हैं। हमें इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अफसोसनाक वाक़े के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस, डॉल्फिन और PHA पाक के इजाफी गार्ड्स तैनात कर दिए गए। छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क सैर के लिए पहुंची और सिक्योरिटी को बेहतर करार दिया। रियाज अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। खातून टिकटॉकर से दस्तदराजी के वाक़े के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क की सिक्योरिटी बढ़ गई। पुलिस, डॉल्फिन एहलकारों के साथ PHA के इजाफी गार्ड्स तैनात। छुट्टी मनाने पार्क में आए लोगों ने सिक्योरिटी को बेहतर और खुद को महफूज करार दे दिया। अब कोई डर नहीं, अब हम महफूज महसूस कर रहे हैं। बहुत अफसोस हो उसके बारे में सुन के, लेकिन अब यहाँ का माहौल काफ़ी बेहतर है, बहुत इंजॉय फील कर रहे हैं। अब ऐसा वैसा माहौल नहीं है और सिक्योरिटी भी काफ़ी बेहतर है यहाँ की। ताहम शहरियों ने इस बात का शिकवा भी किया कि इंतजामात बेहतर होते तो ऐसा वाकया पेश न आता। अगर ये लोग पहले ही सिक्योरिटी मुहैया कर देते तो मतलब मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट यानी कि लड़की के साथ होता ही ना। ग्रेटर इकबाल पार्क में कोई सेल्फी बनाता, कोई पिकनिक मनाते तो कोई कश्ती रानी का लुत्फ उठाते नजर आया। ग्रेटर इकबाल पार्क में मजमूई तौर पर 60 कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 40 तो काम कर रहे हैं लेकिन 20 गैर फाल हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। टिकटॉकर खातून के साथ पेश आए वाक़े के खिलाफ अदाकारा मीरा भी मैदान में आ गई। सोशल मीडिया पर मीरा की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो लड़कों को मशवरा दे रही हैं कि एहतराम, तहजीब और इखलाक का दामन ना छोड़ें। लड़कियों की इज्जत क्या करें, एहतराम, तहजीब, इखलाक। लड़कियों को इतनी इज्जत दें, लड़कियों की इज्जत क्या करें। आगे बताएंगे, टिकटॉक वीडियोस बनी घर की तबाही का सबब। और अब खबर ये कि मिठाई में खटाई पड़ गई। लंदन के आलीशान होटल में मरियम नवाज के बेटे की शादी की तकरीब के दौरान मुजाहिरीन रंग में भंग डालने पहुंच गए। होटल के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं। बैनर पर लिखा है कि पाकिस्तानी कौम की लूटी हुई दौलत पर लंदन में शाही शादी मनाई जा रही है। जनाब, ये वीडियो सामने आ गई है। मौका था खुशी का, लेकिन हुआ क्या हम आपको दिखा रहे हैं। मिठाई में खटाई पड़ गई। लंदन का आलीशान होटल, मरियम नवाज के बेटे की शादी की तकरीब। इस दौरान मुजाहिरीन पहुंच गए। उन्होंने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था पाकिस्तानी कौम की लूटी हुई दौलत है ये। ऐसे में लंदन में शाही शादी मनाई जा रही है कौम की दौलत पर। अपने पैसे खुद खर्च करो, कौम की लूटी दौलत वापस करो। मुजाहिरीन पहुंच गए। अंदर हो रही थी शादी, बाहर हो रहा था हंगामा। जनाब, इसे कहते हैं मिठाई में खटाई। लंदन के आलीशान होटल में मरियम नवाज के बेटे की शादी की तकरीब। इस दौरान मुजाहिरीन पहुंच गए रंग में भंग डालने के लिए। होटल के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और इन बैनर्स पर लिखा था क्या, हम आपको दिखा भी रहे हैं, साथ के साथ बता भी रहे हैं। इन बैनर्स पर, इन प्लेकार्ड्स पर लिखा हुआ था पाकिस्तानी कौम की लूटी हुई दौलत वापस करो। पाकिस्तानी कौम की लूटी हुई दौलत पर लंदन में शाही शादी मनाई जा रही है। यहाँ पर दूल्हे की माँ हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें खर्चा हुआ है कहाँ से ये सबको पता है। ये कुछ इन प्लेकार्ड्स पर लिखा हुआ था। शादी की तकरीब, रंग में भंग पड़ा। लंदन का आलीशान होटल, यहाँ मरियम नवाज के बेटे की शादी की तकरीब। और इसी सब के दौरान मुजाहिरीन पहुंच गए। होटल के बाहर के मनाजिर शादी की तकरीब से यकसर मुख्तलिफ थे। बाहर जो मुजाहिरीन मौजूद थे खासे गुस्से में थे। उन्होंने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और इन बैनर्स पर, इन प्लेकार्ड्स पर लिखा हुआ था
पाकिस्तानी कौम की लूटी हुई दौलत से शादी रचाई गई। ये तकरीब, यहाँ पर मेहमानों को बुलाया गया, इसका खर्चा और किसी ने नहीं, पाकिस्तानी कौम ने उठाया। एक एक नोट, एक एक पैसा, एक एक पाई पाकिस्तानी कौम की जेबों से इनकी जेब में आई। इसी पर इनको गुस्सा आया और इन्होंने यहाँ बाहर पहुंचकर हंगामा खड़ा किया। तो ना सिर्फ ये मुजाहिरा किया गया बल्कि यहाँ पर हमने वीडियो में ये भी देखा है कि नून लीगी कारकुनान और मुजाहिरीन के दरमियान तकरार भी हुई है, सवालों के जवाब भी मांगे गए हैं और पूछा गया है कि इतने आलीशान होटल में ये तकरीब मुनाकिद की गई है, इसके पैसे कहाँ से आए, पाकिस्तानी कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करो, ये नारे लगाए गए। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीब लंदन के आलीशान होटल में सजाई गई है। खबर ये है, इसकी तफसील भी आपको देते हैं। इस आलीशान होटल में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए नवाज शरीफ को भी आते हुए देखा जा सकता है। होटल के बाहर लंदन की सड़क पर ढोल की थाप पर नून लीगी कारकुनों ने रक्स किया, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। ये वीडियो में देखा जा सकता है। मौका था जनाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी का, यहाँ पर उनके नाना भी पहुंचे, नवाज शरीफ को आते हुए देखा जा सकता है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वजीर आजम और चेयरमैन नैब को खुला चैलेंज दे दिया। कहा, जिस एजेंसी की मदद लेनी है ले ले, साबित कर दो कि 1993 से आज तक मेरी जायदाद में एक मरले का भी इजाफा हुआ है। कल एक नया केस खोल दिया गया, इल्जाम लगाया गया कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने मेरे भाई को एक गलत ठेका दिया है। मिस्टर इमरान खान, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पूरी अपनी हुकूमत लगाएं और 3200 अरब में से 32 पैसे साबित करें कि मैंने कोई जाती फायदा उठाया हो। आप दरअसल चीन के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी इन्हीं हरकतों ने सी पैक को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं चैलेंज करता हूं मिस्टर चेयरमैन नैब, आओ तुम्हें खुला चैलेंज है, अगर तुम साबित कर दो कि मेरी माली हैसियत 1993 के मुकाबले में एक मरला इजाफा हुआ है तो मैं कौम का मुजरिम होऊंगा। हिम्मत है तो जाओ, करतारपुर के अंदर 17 अरब रुपया विदाउट पेपरा रूल्स 17 अरब रुपया लगा है। जुर्रत है? नहीं है, इसलिए कि वहाँ छड़ी है। गुर्राते हो। आसिम सलीम बाजवा से पूछा है कि ये सासे कहाँ से बने हैं, वहाँ तो टांगे कांपती हैं। कुछ वीडियोज हैं जिनके ऊपर हुकूमत आपको डुगडुगी बजा के अपने काम करवाती है। कराची मौआज धमाके के बाद हुकूमत ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मामला असेंबली में उठाएंगे ऐसा ऐलान कर दिया। कहते इस वाक़े के जिम्मेदारान को निशाने इबरत बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बल्दिया मवाश मोड़ पर दस्ती बम हमले में जांबाक अफराद के अहले खाना से ताजियत के लिए लांडी शेरपाव कॉलोनी पहुँचे, लवाहिकीन से मुलाकात और फातह खानी की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने धमाके के बाद विफाकी हुकूमत के रवैये को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लोग हुकूमत से क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं। तो जो हुकूमत अमन नहीं दे सकती है उसको हुकूमत करने का हक क्या है? सिराजुल हक का कहना था यौम आज़ादी पर अवाम को निशाना बनाया गया, सदर और वज़ीर आज़म को लवाहिकीन के पास आना चाहिए था। 14 अगस्त को बल्दिया मवाश मोड़ पर मिनी ट्रक को उस वक्त दस्ती बम हमले का निशाना बनाया गया था जब जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमा मिराज खान सवाती की फैमिली एक शादी की तकरीब से वापस आ रही थी। और कराची में बिल्डर माफिया ने शहरियों से करोड़ों रुपए लूटने का मंसूबा तैयार कर लिया। जमशेद टाउन आमिल कॉलोनी में 10 प्लॉट्स पर धड़ल्ले से गैर कानूनी पोर्शंस बना दिए गए। इस पर तर्जुमान SBCA कहते हैं गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची के इलाके जमशेद टाउन आमिल कॉलोनी में बिल्डर माफिया फैला रहा है पोर्शंस का जाल। रातों रात करोड़ों रुपए कमाने के लिए रिहायशी प्लाटों पर गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से की जा रही हैं। 10 से ज्यादा प्लाटों पर शहरियों को चूना लगाने की तैयारियां हो रही हैं। कहा जाता है कि बिल्डर माफिया को जमील मेमन सिस्टम की सरपरस्ती हासिल है। अहम तरीन मामले की जानिब तवज्जो दिलवाने पर तर्जुमान SBCA फरहान कैसर ने
एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई। मंडे को ही आप देखेंगे कि वहाँ पर टीम भी पहुँच गई है और एक्शन शुरू करा दिया जाएगा। उसके बाद ये कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई हो तो शहरियों पड़ोसियों का पहला होना चाहिए अमल के वो हमें मुत्तला करें। काली भेड़ें हर जगह होती हैं। गैर कानूनी तामीरात की वबाल ने कराची को मसाइल के जाल में फंसा दिया है। देखते ही देखते सादा लो शहरियों की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर दिया जाता है, इसलिए मोहतात रहना होगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान और खिलाड़ियों ने तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी से मुलाकात की। श्रीलंका में पाक अफगान वनडे सीरीज से मुतालिक हतमी फैसला नहीं हो सका। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी लाहौर पहुंच गए।